الرحمن الرحیم سب کو السلام علیکم، سائیں کو بھی السلام علیکم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پورے پاکستان کو پیغام دینا چاہیں گے، اور آپس میں تو ہم سب میجورٹی اس وقت سندھی بولنے والے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی طاقت ہے کہ پورے پاکستان کو پیغام دیا جا رہا ہے، اس لیے اردو میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ پشاور سے لے کے گلگت سے لے کے کشمیر سے لے کے کراچی تک انشاءاللہ آپ لوگوں کی حکومت قائم ہوگی۔ پیر صاحب پگارا ہمارے لیڈر ہیں، موجودہ پیر صاحب پگاروں کا ساتھ ان کے پیارے بھائی سائیں صدر الدین شاہ نے ایسے دیا ہے جیسے پیر سائیں شاہ مردان شاہ کا ساتھ سائیں نادر شاہ نے دیا تھا۔ ہر پارٹی میں کچھ شرارتی چمچے موجود ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، تو وہ افواہیں اڑاتے ہیں، باتیں اڑاتے ہیں اور مزے لوٹتے ہیں، جن کو واٹھا کہا جاتا ہے۔ تو واٹھا کا مطلب کہ خام خواہ ہم بولے سائیں ابھی دن ہے اور وہ واہ واہ کر کے تالی بجائیں تو ٹھا ہوا، وہ سچ نہیں بولتے کہ سائیں ابھی دن نہیں ہے رات ہے۔ تو ہمیشہ سچ بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، اور سچ کڑوا بھی ہوتا ہے، لیکن کمال یہی ہے سیاستدان کا یا جو بھی علاقے کا آپ کا نمائندہ ہو اس کا، کہ سچ کو برداشت کرے۔ اب سچ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو پوچھنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا، کوئی جیل چلا جائے تو کچھ واٹھے ہمیں کہتے ہیں سائیں تہاں جی شانہ جیل ونجو ملاقات کرو، تو کتنی عجیب بات لگتی ہے۔ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہم سندھ کے شیر مغرب، یہ جو لاڑکانہ سائیڈ ہے یہ سندھ کی مغرب ہے، اور دریا کے اس طرف جو ہے یہ مشرق ہے۔ شیر مغرب معظم عباسی صاحب ہے اور شیر مشرق محمد خان جنیجو صاحب ہے، دونوں شیر ہمارے ساتھ ہیں۔ سندھ میں منظور پنور صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کا بڑا اچھا نام تھا فیصلوں کے حوالے سے، امن کرانے کے حوالے سے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب سندھ میں صرف دو نام بڑی شان و شوکت سے لیے جاتے ہیں اور فخر سے لیے جاتے ہیں، بابا فیصلوں کرائن ہوا تو سردار معظم عباسی صاحب کندو یا محمد خان جنیجو کندو، اس کے علاوہ کوئی بڑا نام فیصلے کے حساب سے نہیں ہے۔ اور معظم صاحب اور محمد خان جنیجو صاحب کی بڑی مہربانی کہ وہ درگاہ شریف کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ فیصلے زیادہ تر آ کے پیر سائیں پگاروں کی درگاہ پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، تو انہیں روحانی طاقت بھی مل جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے بیٹوں میں بھتیجوں میں الگ الگ لابیز ہیں، گروپس ہیں۔ دیکھیں اسکول میں بھی جب بچے پڑھنے جاتے ہیں تو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کے دوست الگ ہوتے ہیں، کسی کے دوست الگ ہوتے ہیں، پرنسپل ایک ہوتا ہے اسکول کا۔ اس طرح سائیں صدر الدین شاہ کا بھی لیڈر پیر صاحب پگارو، ہمارا بھی لیڈر پیر صاحب پگارو، اسماعیل سائیں کا بھی لیڈر پیر صاحب پگارو، آپ سب کا لیڈر بھی پیر سائیں پگارو۔ ہم پہلے تو آپ لوگوں کے ساتھی ہیں اور لیڈر یا لیڈر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ زیادہ مزہ تب ہے جب آدمی سپاہی بن کے لڑے اور جنرل پیچھے سے حکم کرے اور ہم اور آپ سپاہی بن کے لوگوں کا ساتھ دیں اور خیال کریں۔
आसिफ अली जरदारी साहब हो तो वो मौजूदा पीर साहब के पुराने दोस्तों में शुमार होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब हो वो भी मौजूदा पीर साहब के दोस्तों में शुमार होते हैं। हमारा उनसे कोई जाती दुश्मनी या जाती इख्तलाफ नहीं है, मंशूर नजरिया अलग अलग है। पीर साहब पगारों के नजरिए के साथ जो हैं वो पीर साहब के पास जमा होते हैं, जो आसिफ अली जरदारी साहब के नजरिए के साथ हैं वो उनके पास जमा होते हैं, जो कौम परस्त नजरिए के साथ हैं वो साईं जीएम सैयद के झंडे के नीचे जमा होते हैं। तो इसमें कोई हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अंदाज है सियासत का। हमें सिर्फ इख्तलाफ ये है कि इस वक्त जो हुक्मरान जमायत है उस जमात के ज्यादातर लोग करप्शन में मुलविस हैं, करप्ट हैं, पथारीदार हैं, डाकुओं के साथी हैं। एसएचओ की सीटें भी पैसों में, थाने पैसों में बिकते हैं, दवाइयां हॉस्पिटल से गायब हो जाती हैं, जेलों का फंड जेल खाना जात का वजीर खा जाता है, एग्रीकल्चर का फंड उनका वजीर खा जाता है। हर तरफ करप्शन ही करप्शन है और पूरा पाकिस्तान खास तौर पे सिंध का मजाक उड़ाता है कि कैसे तुम लोगों के लीडर्स हैं जो सारा सिंध खा गए, सारे रोड तबाह, अमन अमान खराब, दवाई मिलती नहीं है, दवाई ले तो वो जाली, यहां तक कि पेप्सी की बोतल भी पता नहीं होता कि हम असली पी रहे हैं या जाली, यहां तक कि मिनरल वाटर का पता नहीं होता कि हम असली पी रहे हैं या जाली। हर चीज में मिलावट और हर चीज में खराबी पैदा हुई है। हुक्मरानों को अब तक ये होश नहीं आया कि अगर दोबारा 2021-22 में जो बारिश हुई थी अगर वो दोबारा हो जाए तो दोबारा पूरा सिंध डूब जाएगा। तो एलबीओडी और आरबीओडी राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो नहरें निकाल के लिए बननी थी वो काम आधे में रोका हुआ है। जब निकाल ही नहीं होगा तो पानी दोबारा जमा होगा और दोबारा पूरा सिंध डूब जाएगा। कोई तवज्जो नहीं है। बंद बचाओ बंद, सैलाब से पहले कोई तवज्जो नहीं होती, अरबों रुपया फंड खाया जाता है और जब सैलाब आते हैं तो उस वक्त ये परेशान होकर बंदों पे आगे चक्कर लगा रहे होते हैं कि बंद को चूहे खा गए, बंद को लोग मट्टी उठा के ले गए और बंद कमजोर हो गए। कोई तवज्जो इन लोगों की आप पे नहीं है। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वो दौर कामी कार्रवाई का निशाना बने और आप लोगों से हम जेल मिलने ना आए, वो दौर खत्म हो गया। अब हमें पता है कुछ दिन पहले असल जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते जुल्फिकार अली भुट्टो पीर साहब से मुलाकात करने नारे चले और हम उनको लेके गए, मौजूद अब्बासी साहब और हम, और पीर साई ने उनको बड़ी शफकत दी और उनके अंदर बड़ा हमने भुट्टो साहब में आवाम के लिए दर्द देखा, बड़ी ज़हानत देखी, बड़ी दिलेरी देखी और हमें यकीन है कि हकदार को अल्लाह जरूर उसका हक देगा और वो जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी पार्टी उस मंशूर के मुताबिक चलाएगा जो अवाम का मंशूर है और बेरूपिये जो पीपल्स पार्टी पे बैठ गए हैं उनसे जान छूटेगी। आप देखें यूनियन काउंसिल से लेके टाउन कमेटी से लेके म्यूनिसिपल कमेटी से लेके सब हुक्मरान एमपीएस एमएनएस को भत्ता पहुंचाते हैं, बजाय आपको देना वो आपका माल लेके जाते हैं। ये हर आदमी जानता है। ऐसा मैं दावा करता हूं कि कोई आदमी मुझे दिखाएं कि आज के दौर में उसको बगैर पैसों के नौकरी मिली हो। नौकरियों के रेट लगते हैं हमारे सूबे में, सिंध में। तो फिर जब सिंध के बंटवारे की बात आती है तब हमें गैरत आती है और जब सिंध के साथ सिंध को नोच के खाया जाता है तब हमें गैरत क्यों नहीं आती है? तब भी हमें गैरत आनी चाहिए। हम सबको तैयार रहना चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कश्मीर से लेके कराची तक करप्शन के खिलाफ हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इंशाअल्लाह पीर साहब पगारों कराची में
जिना ग्राउंड में अपना जलसा करेंगे और महाजन उर्दू स्पीकिंग लोग, काबिल एहतराम इज्जतदार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। एमक्यूएम बनने से पहले कुछ जमायत इस्लामी में थे और ज्यादातर मुस्लिम लीग में थे। आज भी सोशल मीडिया के जरिए हम कराची के लोगों को भी दावत देना चाहते हैं कि आ जाओ वापस लौट के मुस्लिम लीग में, आ जाओ पीर साहब पगारों की पार्टी में, दोबारा से शुरुआत करते हैं और पाकिस्तान को मजबूत करते हैं। ईरान हमारा भाई है। कुछ लोग, किराए के लोग शिया सुन्नी में फिर से फर्क करना चाह रहे थे, तो उसका नतीजा ये निकला और निकल सकता है। आज अगर हमने ईरान के खिलाफ या ईरान के हक में आवाज ना उठाई और ईरान के खिलाफ बातें की, तो मकाफात अमल कल को पाकिस्तान की बारी ना आ जाए, खुदा ना खास्ता। इसलिए हमें ईरान के लिए आवाज उठानी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कपड़े, डोनेशन, अपना खून ईरान की मदद के लिए भेजने का बंदोबस्त किया जाए। हमने ईरानी कॉन्सुलेट वालों से कराची में भी बात की कि अगर आपके मुल्क में खून की जरूरत है तो हम लोग हर जगह कैंप लगा के टनों के हिसाब से खून देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, और जब बताएंगे तो इंशाअल्लाह हम अपना खून देंगे। और जब खून देंगे तो हमें जिहाद जितना सवाब मिलेगा, क्योंकि सबसे कीमती चीज खून होता है।